افغانستان میں امن اور استحکام خطے کے مفاد میں ہے. افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی تاشقند میں ازبک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشتیں اور معاہدے جلد حقیقت کا روپ دھار لیں گے. ریلوے کے ذریعے تجارت اہمیت کی حامل ہے. ازبکستان کو کراچی اور لاہور سے منسلک کریں گے. ازبک صدر نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھایا جائے گا. ازبکستان کے دورے پر آئے پاکستان کی ممتاز کمپنیوں سے سرمایہ کاری اور تجارت پر گفتگو ہو رہی ہے. علاقائی اور عالمی فورمز پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرتا ہوں. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان معاہدوں پر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. پائیدار استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور چیمبر آف کامرس سے خطاب. کہا بجٹ کے لیے تاجروں سے تجاویز لے رہے ہیں. محمد اورنگزیب کی مشیر خزانہ کے پی سے ملاقات. مزمل اسلم نے ضم اضلاع کے فنڈز رکنے کی شکایت کی. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا NFC سے متعلق خدشات کا جائزہ لیا جائے گا. تمام صوبوں سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. بہترین مالیاتی انتظامات پر خیبر پختونخوا کی کارکردگی کو سراہتے ہیں. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت. سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کے 3 فیصلے ہیں. آئینی بینچ آرمی ایکٹ کی شقیں کالعدم قرار دیے بغیر بھی ٹرائل کالعدم قرار دے سکتا ہے. سویلینز کو فوجی تحویل میں دینے کا فیصلہ درست نہیں تھا. حوالگی فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے. تمام 5 ججز متفق تھے سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے جن کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو چکا ان کا دوبارہ ٹرائل ممکن نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فوجی عدالت سزا دے کر ATC بھیج دے. پاکستان میں احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بانی PTI نے ہمیشہ سیاسی انتقام کی حمایت کی. انہوں نے اپنے دور میں جیل مینول تک بدل دیا تھا. انہیں جو سہولتیں مل رہی ہیں ان کے دور میں کسی کو نہیں ملی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آکسفورڈ یونین کو انٹرویو. کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام جارحیت نہیں بلکہ دفاع کے لیے ہے. امریکہ کی جانب سے میزائل پروگرام پر پابندی تشویشناک ہے. بھارت کو ہتھیار فراہم کر کے مضبوط کیا جا رہا ہے. کیا ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں یا دوسرا یوکرین بننے کا انتظار کریں؟ احسن بھون جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے. پاکستان بار کونسل نے منظوری دے دی. اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان کی زیر صدارت اجلاس میں ووٹنگ. 19 میں سے 4 اراکین کی مخالفت، 1 نے رائے نہیں دی. پاکستان بار کے ممبر جوڈیشل کمیشن اختر حسین کمیشن کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے. وفاقی کابینہ میں توسیع کے لیے اتحادیوں سے مشاورت مکمل. ذرائع کا کہنا ہے 5 وفاقی وزراء اور 10 وزرائے مملکت کو شامل کیا جائے گا. طارق فضل چودھری کو وزارت قومی صحت، خالد مکسی کو وزارت مواصلات اور مصطفیٰ کمال کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا بحری امور دیے جانے کا امکان ہے. فیصل واڈا بھی نئی کابینہ کی دوڑ میں شامل ہیں. ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے وفاقی کابینہ میں توسیع کے لیے 15 سے 20 ارکان کی فہرست نواز شریف کو ارسال کر دی گئی ہے. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان اور شیراز کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی. تفتیشی افسر کی نااہلی. ملزمان کی شناخت پریڈ نہ ہو سکی. گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ نہ کیے جا سکے. عدالت کا تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار. ملزمان کے وکلا کو نوٹس جاری. گواہوں کو کل دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت. آئین کا لفظ حکومت کے لیے خوف کا باعث بن چکا ہے. اپوزیشن اتحاد کے سیمینار سے شاہد خاقان عباسی کا خطاب. کہا دکھ ہے جمہوریت کے دائی آج اقتدار کے دائی. اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک نہیں چل سکتا. اپوزیشن قیادت متفق ہے کہ آئین پر عمل درآمد ناگزیر ہے. میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا وفاقی حکومت پختونخوا کا حق نہیں دے رہی. فاٹا کے انضمام کے واجبات اب تک نہیں دیے گئے.
पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फजाइया की नाहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पसे पर्दा असल हकाइक आश्कार हो गए। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। पाकिस्तान में आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर भारतीय फजाइया का भांडा फोड़ा। भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्जियाकार और गैर टीम की सिलेक्शन दुरुस्त थी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इससे बेहतर टीम नहीं बना सकते थे। हेड कोच आकिब जावेद टीम के दफा में सामने आ गए। कहा बाबर आजम का कोई मुतबादल है तो बताएं। हार गए तो ऐसा नहीं हो सकता कि टीम तब्दील करके अंडर 19 टीम ले आए। ऑस्ट्रेलिया में इसी टीम ने तारीख बनाई। भारत से जीत जाते तो इतना वावेला न होता। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। रावलपिंडी में बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। पाकिस्तान इवेंट में अपना आखिरी मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। और इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें डू और डाई मुकाबले में मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी 37 रन पर आउट हो गए। दोनों टीमों को सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। वज़ीर कानून ने अक़वाम मुत्तहिदा के अहम ट्रस्ट फंड्स बशमूल तशद्दुद के मुतासरीन और यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। जनीवा में आला सतह सेशन से खिताब में वज़ीर कानून ने कहा, गुज़श्ता दहाई में 70 से ज़ायद इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कवानीन मंजूर किए गए। 26वीं तरमीम से साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल की बुनियादी हक तस्लीम किया गया। तरमीम पाकिस्तान के इंसानी हुकूक के फ्रेमवर्क में संग-ए-मील की हैसियत रखती है। कुफर खुदा 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 करके पहली दफ़ा मैं बता रहा था अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, आप पहले वफाकी वज़ीर हैं इंटीरियर मिनिस्टर के बाद जो हमारे सूबे का दौरा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये हमेशा गिला ने प्राइम मिनिस्टर से भी किया कि जब से आप वज़ीर आज़म बने आपने खैबर पख्तूनख्वा का विजिट ही नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म से शिकवा। कहते हैं शहबाज शरीफ से गिला है। जब से वज़ीर आज़म बने खैबर पख्तूनख्वा नहीं आए। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वज़ीर आज़म KP आएंगे तो उनको यहाँ की मुश्किलात का पता चलेगा। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत का मुल्जिम को 18 मार्च को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी टीम ने अरमगान के घर से मिलने वाले लॉकर खोल दिए। दोनों डिजिटल लॉकर में कागजात रखे थे। इलाका मकीनों ने अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से घर खाली करने के लिए IG सिंध और दीगर हुकाम को खत लिख दिया। सोसाइटी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर कामरान कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। IMF के क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में रियायत पर एतराज उठा दिया। ज़राए का कहना है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजव्वज़ा रियायत IMF ने मुस्तरद कर दी। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पुर्जा जात की मकामी फरोख्त पर सेल्स टैक्स में रियायत की भी मुखालिफत की। सर्दी का पलट करवार। बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार। मुल्क के बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। स्कर्दू समेत गिलगित बल्तिस्तान में निजाम जिंदगी मुंजमद। रास्ते बंद हो गए। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी हर सू बर्फीले नजारे। वादी नीलम, वादी लीपा समेत कई इलाकों में राबता सड़कें बंद हो गईं। अपर और लोअर चित्राल में सफेदी छा गई। लवारी टनल पर अब तक 14 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में शफीक मोड़ के करीब फायरिंग से बेटा जाँ बहक, बाप जख्मी। फायरिंग का वाकया प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के दौरान स्टेट एजेंसी में पेश आया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में नेटी जटी पुल पर बाप बेटे की जान लेने वाला ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी गोदाम चौरंगी पर ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। इरफान एक बच्चे का बाप और गारमेंट्स फैक्ट्री का मुलाजिम था। 2 माह के दौरान हैवी ट्रैफिक से हादसात में मरने वालों की तादाद 136 हो गई। नोशकी में 3 कस्टम इंस्पेक्टर्स के खिलाफ नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुदस्सिर समालानी गाड़ी चला रहा था। चेक पोस्ट पर कस्टम इंस्पेक्टर ने स्पाइक्स ऑन किए। टायर फटने के बायस गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मुदस्सिर जाँ बहक और साथी जख्मी हुआ।
रुझान में कच्चे के डाकुओं ने पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। थाना सोमियानी के नायब मुहर्रर नईम की तलाश जारी। शिकारपुर लिंक रोड से 4 अफराद अगवा। पुलिस का कहना है 4 अफराद गांव ईसा टामरी के जा रहे थे। रिक्शा रुस्तम के कच्चे से बरामद किया गया। जनूबी एशिया में हथियारों का अदम तवाजुन खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से जौहरी हथियारों पर मुतवाजन पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच ने जेनेवा में तख्फीफ असलहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दुनिया भर में दिफाई अखराजात $2.4 ट्रिलियन से तजावुज कर गए। ताकतवर मुमालिक हथियारों की दौड़ को फरोग दे रहे हैं। जदीद हथियारों और मसनूई जहानत का अस्करी इस्तेमाल आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा है। इसराइल आज 4 यरगमालियों की लाशों के बदले 620 फलस्तीनियों को आजाद करेगा। हमास का कहना है इसराइल से मुआहदा तय पा गया। अमेरिका ने जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की तस्दीक कर दी। हफ्ते को जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला खत्म होगा। मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत बरकरार। 1 माह में 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल का दमिश्क में फौजी मरकज पर फजाई हमला, 4 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल जंगबंदी और मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत रोकने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की जड़ है। सलामती काउंसिल फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी वज़ीर खारिजा से मुलाकात। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात, मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के समेत बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दिफा ने वाशिंगटन के सरकारी दौरे में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर से भी मुलाकात की। I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal. Very big. It could be $1 trillion deal. We're spending hundreds of billions of dollars on Ukraine and Russia fighting, or that would have never happened if I were president. यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहदा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जुमे को मिलने आ रहे हैं, खुले दिल से मिलूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यूरोप अमरीकी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल फैक्स का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी जमीन पर मादनियात खरीदना चाहूंगा। एलॉन मस्क ने ईमेल पर मुलाजमीन से जवाब तलब किया है, उसकी तायीद करता हूं। ट्रंप ने तांबे की दरामदाद पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म भी दिया। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार आगा अली, वसीम बदामी करेंगे मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिये और तबसरे, आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। और ब्लॉकबस्टर ईद की तैयारी, सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और सिग्मा फिल्म्स की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लव गुरु का पोस्टर सामने आ गया। सुपरस्टार हुमायूं सईद और माहिरा खान नुमाया कास्ट में शामिल। लव गुरु बड़ी ईद पर बड़े सिनेमा पर सजेगी।